my principal, all the staff members and students. A very shining good morning to everyone. My dear students, today you may feel it over that the General Assembly has been organized and differently you find the chief guest of honor, and we say always that Atiti Devo Bhava. This is the slogan of BMTS. We always feel very pleased, we always feel honored when the guest, when the chief guest come here, we always welcome them heartily. My dear friends, let me tell you something about my chief guest of honor, all the invitees today. As you know well, that road safety program was launched on 17 November 20, and we felt proud on that day also that the starting was from your school. I hope that every student, every member should feel proud on that matter, that really it is very embarrassing matter and we feel proud. My dear students, today our chief guest, Mr. Vijayvardhan Tomarji, SDM Garmukteshwar. Mahesh Sarwaji, ARTO Parivartan Hapur. ARM Garmukteshwar, Mr. Ranjit Singh. And our patron, as sir discussed on that day, Rakesh Sharma ji. My dear friends, really it is very honored matter for us. We feel great pleasure and honor when we find such renowned personalities among us. My dearest friends, as it was introduced, the numbers 46 teenagers by Rakesh Sharma ji on 17th of November, you know well. It was also told that in India, 4,80,256 cases of accidents are reported. Out of them, 1,57,652 people lost their life only in India. And my dear friends, you know well why it is required. This is the urgent requirement for that one. So the government has launched such programs on the wide basis to acknowledge safety measures for the prevention of the hazardous conditions like that. In India, UP comes on third level in accident cases. My dear students, my dear students,
you know well that first one is in state as it was told by sir, that is in Tamil Nadu. There 57,000 people lost their life in 2019, and in UP 42,000 people lost their life only in 1 year in 2019. So my dear friends, it is very thinkable matter that we have to use the precautions while using vehicles and while using the roads. Now I would like to request to Mr. Arun Kumar Tyagi to brief the program forthcoming. Thank you, sir. शिक्षा और समाज में परिवर्तन विद्यालय बड़ी दीर्घ परंपरा से करते आए, लंबी परंपरा से करते आए हैं। उसी के क्रम में सड़क सुरक्षा सतर्कता अभियान, सड़क पर सुरक्षा कैसे हो, किस प्रकार से उसको क्रियान्वयन किया जा सके और भावी नागरिक यहाँ बनते हैं और वो देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो यहीं से उनको एक नई दिशा निर्देशन प्राप्त हो जाए तो उनका मार्ग सरल हो जाता है। 2020 सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये एक विषय है, एक थीम है। इसको लेकर के सरकार और सरकार से जुड़े हुए जो जितने भी विभाग हैं वो एक साथ आए हैं और पहली बार 5 विभाग एक साथ ज्वाइंट हुए हैं। ये बड़ा सराहनीय कदम है। यहाँ पर आपको सड़क, रोडवेज, शिक्षा, एजुकेशन, पुलिस, उसके बाद में चिकित्सा और लोक निर्माण, जो सड़कें हमारी बनती हैं, ये 5 विभागों का एक साथ आना ये अपने आप में बताता है कि विषय कितना महत्वपूर्ण है और कितना इसके पीछे दूर तक का दृष्टिकोण है ताकि आप तक सुरक्षा पहुंचे और विशेष प्रकार से। और हम यहाँ बताना चाहते हैं, जो मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हैं, कि 18 नवंबर से ये इस अभियान का शुभारंभ हमारे विद्यालय से हुआ था और आज समापन जो 24 तारीख में समापन है, ये सौभाग्य की बात है। फिर से हमारा ही विद्यालय यहाँ से इस एक दूरगामी और दीर्घगामी परिणाम की अपेक्षा करता हुआ इस अभियान में हम अपनी सार्थकता, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। चूंकि देव मेमोरियल पब्लिक स्कूल सामाजिक उन्नयन के सभी जागरूक कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दिखाता है उत्साह के साथ में, क्योंकि विद्यालय का लोगो भी यही है, सकारात्मक सोच और ऊर्जावान प्रयास। हमारे प्रबंधक महोदय हमेशा इस दीर्घ सूत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम निरंतर उसके अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ, उसको अचीव करने की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। यहाँ ओमवीर सर ने परिचय पूर्व में करा दिया है और ये एक परंपरा भी रही है कि विद्यालय अतिथि देवो भव की परंपरा के केंद्र हुआ करते हैं, आने वाली पीढ़ी को बताते हैं। जब भी यहाँ पर कोई विशेष गैदरिंग होती है, समारोह होता है, तो विशेषकर आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो। मैं इसी क्रम में ज़्यादा अधिक समय ना लेते हुए मैं अपने श्री राकेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस सुरक्षा के विषय में और अधिक विस्तार से बताएंगे। और चूंकि उनकी शैली ऐसी है, वो इतने विद्यालय में अपना निर्देशन दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो एक अध्यापक की भूमिका निकल करके माइक के सामने आती है। मैं राकेश जी को फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ कि वो विद्यालय में आते हैं और हमारे बच्चों को पूर्व में ही एक सड़क पर चलने वाला एक सुशिक्षित नागरिक बनाने की तरफ उनका प्रयास है। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में डीएम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय एसडीएम श्री
राजकीय प्रवर्तन ठाकुर श्री महेश कुमार शर्मा सर, परिवहन निगम इको गढ़ से ARM श्री रणजीत सिंह सर, डीएम पब्लिक स्कूल गढ़ के प्रबंधक चौधरी राजेंद्र सिंह, सभी सम्मानित अध्यापक एवं कार्य छात्राओं, शुभारंभी सड़क सुरक्षा का सप्ताह का आपके विद्यालय से हुआ और भाग्यशाली है समापन के अवसर पर भी आप लोगों के प्यार के कारण, आप लोगों के दुलार के कारण हम आपके मन में हैं। प्यारे बच्चों, भगवान गीता में कहा है, कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है। कर्म भूमि में फल के लिए श्रम सभी को करना पड़ता है। ईश्वर हमारे हाथों में लकीरें देता है, उसमें रंग भी को भरना पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये आपको तय करना है कि हमें जीवन में किस लाइन को पकड़ना है। हमें समाज का एक शिक्षित युवा वर्ग का सदस्य होने के नाते आप किस पंक्ति में जाना चाहते हैं, किस कतार में जाना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, स्वदेश प्रेम चल रहा है, अपने लिए प्रेम चल रहा है, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, ये आपको तय करना है। और ये सब अच्छी भावनाएं, देश के लिए, मर मिटने के लिए, समाज के लिए कुछ करने की जो भावनाएं हैं, वो ऐसे ही खुशनुमा, अनुशासित और अच्छी योग्यता वाले विद्यालय से ही आपको मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती है। ये मेरा अपना आप मानना है। तो प्यारे बच्चों, आपको भविष्य में अच्छा कुशल चालक बनना है, समाज का एक अच्छा कार्यकर्ता बनना है, देश का एक अच्छा नागरिक बनना है, तो आपको हर हालत में अपने इसी बाल्यकाल से अपने जीवन में ट्रैफिक के नियमों को मानना है, उनको अपनाना है, उनका पालन भी करना है और बाकी अपने परिवार के सदस्यों को भी उनके प्रति आपको जागरूक करना है। आज की डेट में 197 देशों में हम हिंदुस्तान के लोगों का स्थान सबसे पहले की पंक्ति में है। प्रतिदिन सड़क हादसों में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के कारण प्रतिदिन चोटिल होने वाले, घायल होने, मृतक होने वालों में हम हिंदुस्तान के लोगों का स्थान सबसे पहले की श्रेणी में आता है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में 28 राज्य हैं, 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर 37 राज्यों में हम उत्तर प्रदेश के लोगों का स्थान पिछले 10 वर्ष से प्रतिदिन सड़क हादसों में मरने वालों में रिकॉर्ड बना हुआ है। वो ध्वस्त नहीं हुआ, वो डाउन नहीं हुआ, और उसका कारण यही है कि पूरे देश में तमिलनाडु में रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बावजूद रोड एक्सीडेंट में मरने वाले उत्तर प्रदेश के नौजवान युवकों की संख्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। बड़ी भयावह स्थिति है। हमारी युवा पीढ़ी जो हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के कारण इस संसार से ऐसे विदा हो रही है। तो कोई बच्चा, मैंने विश्वास नहीं करता कि कोई बच्चा ये चाहेगा मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सड़क दुर्घटना का शिकार होकर इस दुनिया से ऐसे में चले जाएं। तो यदि लंबा सुरक्षित जीवन व्यतीत करना है तो हमें कदम कदम पर जो हमारे ट्रैफिक के नियम हैं उनको अपनाना होगा, उनको पालन करना होगा, तभी हम एक जागरूक नागरिक कर अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। समाज में कुछ सेवा भाव करने का मन है, उसको हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके पूरा कर सकते हैं और एक देश का अच्छा नागरिक बनकर तभी हम दुश्मनों से देश के लोगों की रक्षा कर सकते हैं। अंगहीन होकर कोई भी व्यक्ति सीमा पर जाकर जिस प्रकार की गतिविधियां आए दिन देश की सीमाओं पर होती हैं, अंगहीन कोई भी युवा वर्ग सीमा पर जाकर दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए आपको हर हालत में अपने इसी बाल्यकाल से ट्रैफिक के नियमों को पालन करने का आपको प्रण लेना है, संकल्प लेना है। संकल्प की आगे सदा प्रगति मिलते हैं। अपना मुकद्दर जो खुदे बनाते, दुनिया उसी की धुरी पर घूमती है। मेहनत ही जिनका धर्म हो, कर्म हो, सब चुनती है। असंभव कुछ नहीं होता अगर हम ठान ले मन में कि संकल्प की आगे सदा प्रगति मिलते हैं। यदि आज आप संकल्प की होकर ध्यान दिलाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको जीवन में
भावना, एक जागरूकता का एक मिशन, एक जुनून आपके अंदर पैदा होना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी सब बैठे हुए, सभी के समय की कीमत है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से पुनः यही आग्रह करता हूँ कि आप बिना लाइसेंस वाहन न चलाएं, दुपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग न करें, बिना हेलमेट पहने दुपहिया वाहन न चलाएं, बिना सीट बेल्ट बांधे कार न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, ड्रिंकिंग और ड्राइविंग एक साथ कभी नहीं। विपरीत दिशा में वाहन चलाना अपनी और दूसरे की जान के साथ खिलवाड़ करना। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। गणमुक्तेश्वर to shower the blessing words from Christ. Sir, please come. आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब, एआरटीओ साहब, प्रिंसिपल साहब और श्री राकेश शर्मा जी, मैं सड़क सुरक्षा सप्ताह के इस समापन कार्यक्रम में इनविटेशन के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये हमारा जीवन जो बहुत अनमोल है, इसे आप लोग सुरक्षित रखें। बच्चों, आज हम सड़क पर देखते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। आप हमको सबको सुरक्षित चलने के लिए सुरक्षित रहना है। बहुत से बच्चे देखते हैं बाइक चलाते हैं, बहुत स्पीड में तेज़ी से चलाते हैं, बिना हेलमेट के चलाते हैं। एक ही बाइक पे 3-3, 4-4 बच्चे बैठते हैं, बहुत गलत है। बच्चों, ये जीवन दोबारा नहीं मिलता, इसे सुरक्षित रखें। हमेशा हेलमेट पहनें और लाइसेंस जो बनने की एज है हमारी 18 साल, इसे लाइसेंस बनवाने के बाद 18 साल की उम्र के बाद ही वाहन चलाएं। हमारे लिए हेलमेट जो है ये एक सुरक्षा कवच की तरह होता है, इसे हमेशा पहन के ही वाहन चलाएं। ज़्यादा स्पीड में वाहन बिल्कुल ना चलाएं। हम लोग सब देखते हैं सड़क पे कुछ बच्चे जो हैं जिग जैग करते हुए स्टंट भी करते हैं, जो अपने जीवन को खतरे में डालने के बराबर है। बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं जिसे हम अपने सावधानी से बचा सकते हैं। साथियों, बच्चों, ये जीवन अनमोल है। कृपया ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें जो आपके शारीरिक हानि के साथ साथ हमारे परिवार को भी चिंता में डालते हैं। हम ये सब जो कार्यक्रम होता है सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, ये सब जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। बार बार हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। हर महीने सड़क सुरक्षा सप्ताह आपकी जागरूकता के लिए ही मनाया जाता है, ताकि हम लोग सावधानी से सुरक्षित रहें और दूसरों को भी, सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखें। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और सबसे यही पुनः अपील करूँगा कि सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। You are the best one instructor to the family. You may instruct to your father, to your mother, to your elder brother. That's also rules have been made by the transport and should be followed. And I would like to assure you, sir, that no student of Dean Public School is allowed to come on bike, on scooty to school. That completely has been prohibited. Next one, Mahesh Sharma. DMPS पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित SDM गण श्री विजय वर्धन तोमर जी, गणमुक्तेश्वर ARM श्री रंजीत सिंह जी, हमारे TSI अच्छी टिप्स देने वाले, सामाजिक काम में भाग लेने वाले श्री राकेश शर्मा जी, विद्यालय के प्रबंधक जो सदैव सामाजिक कार्यों के लिए सहयोग और आगे बढ़ के कार्य करने वाले श्री राजेंद्र सिंह जी, विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, समस्त स्टाफ, ड्राइवर बंधुओं, कर्मचारियों, यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मियों और मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, ये सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम अक्सर आयोजित होते हैं। बच्चे भी बहुत अब तक अवेयर हो गए हैं। सड़क सुरक्षा में अभी हमारे राकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी चीजें जैसे बताई आपको टेक्निकल, हम सब नियमों को जानते हैं। या जितने हमारे छात्र छात्रा बैठे हैं या हमारे जितने ड्राइवर बंधु बैठे हैं, मैं छोटी सी बात कहूँगा कि क्या हेलमेट पहनना अनिवार्य है कि नहीं? जो नहीं जानते वो हाथ उठाएंगे, जो नहीं जानते, अर्थात सब जानते हैं। सीट बेल्ट लगाएं, ये सब जानते हैं। आवश्यकता किस चीज की है? आवश्यकता है कि इस मानसिकता को जगाना कि लॉ वायलेंस करना हमारे लिए शान की बात नहीं है। आप युवा हैं, अज्ञानतावश ऊर्जा की मात्रा इस आयु में अधिक होती है, उस जोश के कारण। और जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि विजय भी तो बगैर हेलमेट के मार्केट में जाता है, क्यों लगाऊं? दोनों चीजों में बड़ा फर्क आ गया कि हम जानते हैं कि हेलमेट लगाना बाय लॉ से भी अनिवार्य है, हमारी सेफ्टी के लिए भी अनिवार्य है। दुर्घटना के समय पे ये 70% तक हमारी जान भी बचा लेता है, हम सब जानते हैं। हमारे विद्यालय की जो बसें चलाते हैं वो ड्राइवर बंधु, वो भी सब जानते हैं। उस विद्यालय का तो मैं बहुत ही इसलिए भी सम्मान करता हूँ कि समय समय पे जो निर्देश परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि चालकों का समय समय पर रिफ्रेशमेंट, हेल्थ चेकअप, जो रिफ्रेशमेंट कोर्स आप कराते हैं, अखबार के माध्यम से मैं पढ़ता हूँ और बहुत ही सुखद अनुभव महसूस करता हूँ। यही सब कराने की आवश्यकता हमको इसलिए है कि जो रोड के सेफ्टी रूल्स, रोड पर चलने के लिए सुरक्षित जो नियम हैं उनको हम सब जानते हैं, तो उनको जगाया कैसे जाए, उसके लिए जागरूक कैसे हुआ जाए, अवेयरनेस कैसे लाई जाए। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो हम बड़ी तैयारी करते हैं, त्योहार की तैयारी करते हैं, शादी विवाह की भी तैयारी करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं। उस समय पॉलिटिक्स
बॉम्बे की, अभिनेताओं की, वहीं हमको अपने घर के चर्चा में एक बिंदु सड़क सुरक्षा का भी रखना चाहिए। महीने में, सप्ताह में कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन अखबार को लेकर के बैठना चाहिए और जो दुर्घटनाएं हुई उनके संभावित कारणों को जानना चाहिए कि भाई ये गाड़ी इतनी बुरी तरह कैसे घुसी कि इसमें 8 लोग बैठे थे, 8 के 8 खत्म हो गए, 5 बैठे थे, 5 के 5 खत्म हो गए। जब हम किसी बिंदु पर चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक जागरूकता आती है, चाहे भयवश, चाहे ट्रू अवेयरनेस। तो हम इसको सड़क सुरक्षा को लेकर के कार्यक्रमों तक सीमित ना रहें। मेरा शुद्ध अनुरोध आया यह आप सभी से कि जो कार्यक्रम तक सीमित रह जाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन रोड पर देखने को नहीं मिलता। हालांकि एक सुखद बात यह है कि जो सरकार की इतनी सब कार्यक्रम चल रहे हैं, नीतियां चल रही हैं, हमारे जिले में भी एक्सीडेंट और फैटेलिटी रेट कम हुए हैं। और आपको एक बड़ी सुखद जानकारी देते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी हापुड़ डिपो है रोडवेज की, उसके बसेस के एक्सीडेंट 2018-19 में जो एक्सीडेंट हुए थे वो 19-20 में कम हुए और जो 19-20 में हुए थे वो इस फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर तक 0 है। हमारी हापुड़ डिपो की ये अवेयरनेस का ही परिणाम है। इसी प्रकार के परिणाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर ओर देखना चाहते हैं। ये जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की विशेष पहल और निर्देश पर मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन 4 सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के निर्देश दिए गए और वो स्वयं भी इनकी समीक्षा खुद करते हैं। अर्थात सड़क सुरक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद समीक्षा करते हो, इसका अर्थ हमको समझना चाहिए। हमारे छात्र सब, युवा छात्र हमारी धरोहर है, देश की धरोहर है। आज जीवन बचेगा तो कल देश के लिए कुछ करेंगे। हमारे गरम साहब कह रहे थे अभी कि बिल्कुल बहुत सही बात कह रहे थे कि सबका योगदान है, बड़ों का भी योगदान है, बच्चों का भी योगदान है। बच्चों का खुद का जो बताया गरम साहब ने कि भाई मोटरसाइकिल पे 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग बैठे, ठीक है, आपकी आयु कम है, ज्ञान कम है, ऊर्जा अधिक है, जोश है, लेकिन प्रारंभ यहीं से होता है। जब हम खुद लॉ वायलेंस कर रहे होते हैं तो फिर हम एज राइडर कभी भी ड्राइवर को मोरली टोक नहीं पाते हैं। यहीं से निकलती है वो थॉट कि जो ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहा होता है तो जो साथ में उनके साथी सहयात्री होता है, जैसे कि आप अपने किसी बड़े भाई, चाचा, पिताजी, किसी के साथ भी यात्रा कर रहे हो सकते हैं, तो जब वो बाई लॉ से गाड़ी चलाते हैं और आप लॉ वायलेटर हैं पहले से, तो आप क्या कहते हैं कि पापा ये क्या आप गाड़ी चला रहे हो कि घसीट रहे हो? ये भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट। यही थॉट बदलने की जरूरत है। क्यों कि आप दुर्घटना के लिए उकसा रहे हैं। वो ड्राइवर आपके भाई हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, बल्कि उल्टा करना है। जिस वजह से कई बार आप लोगों के दिमाग में आती होगी कि हम लोग ड्राइवर तो हैं नहीं, गाड़ी तो चलाते नहीं हैं, कभी कभार ले जाते हैं घर से निकाल के मोटरसाइकिल, पापा से छिपके आ गया लेके, हम ही को सब लेसन देने चले जाते हैं। उसकी आवश्यकता सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि जो परिपक्व मस्तिष्क है उसको कन्वेंस करने में हमको, हमारी सरकार को थोड़ा समय लगता है। जो आप परिपक्वता की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कन्वेंस करना ऐसा महसूस होता है, ऐसा सरकार ने माना है, यदि आप कन्वेंस होंगे, आप सड़क पर सुरक्षित चलेंगे,
यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो आप जिनके साथ यात्रा कर रहे होंगे उनको भी सुरक्षित चलने के लिए फोर्स करेंगे, उन्हें कन्वेंस करेंगे। जो हमारी सरकार है उसने इस कार्यक्रम के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए कार्यक्रम को क्लब किया है। इस सप्ताह का नाम था कोविड-19 से बचाव एवं सड़क सुरक्षा। वो इसलिए किया क्योंकि कोविड-19 वायरस के कारण जो महामारी फैल रही है, यातायात में उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो हमारे बसों के ड्राइवर हैं, जब वो बच्चों को लेकर चलते हैं तो जो मूल स्लोगन हमारा कोविड-19 का है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का बसों में पालन हो, मास्क लगे हो, साबुन इत्यादि से समय समय पे जो निर्देश हैं डॉक्टरों के उससे हाथ धोएं, आवश्यकता पड़ने पे सैनिटाइजर का उपयोग करें और सड़क पर सुरक्षित चलने में हम खुद तो पालन करें ही यातायात के नियमों का, दूसरों को भी सुरक्षित चलने में मदद करें। हम चाहे ड्राइवर या राइडर हों, ऐसा नहीं है कि तभी हम रोड सेफ्टी को फॉलो कर सकते हैं। जब हम पैदल चलते हैं उसके साथ भी रोड सेफ्टी जुड़ी होती है। जब आप सड़क पार करते हैं तो प्रॉपर दोनों तरफ देख लें, बस ये नहीं कि निकले और बस दौड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए, वो भी दुर्घटना का कारण होती है। हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन आपको बचाने के चक्कर में वो वाहन कहीं दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। अंततः बात पुणे में अपनी कोई दोहरा रहा हूं कि नियम जितने भी हैं हम सब जानते हैं, उसकी लॉफुली इंपॉर्टेंस भी जानते हैं, उसकी वास्तविकता में एक्सीडेंट के दौरान क्या स्थिति होती है वो भी जानते हैं। केवल उसको मानने की जरूरत है। आप सभी अपने अपने घरों पे सड़क सुरक्षा पे चर्चा करेंगे, इसको चर्चा का एक भाग बनाएंगे। फ्रीक्वेंटली घर में हो, वीकेंड पे हो, चाहे 2 वीक में हो या महीने में हो, लेकिन चर्चा जरूर हो। किसी कार्यक्रम में जाएं तो अन्य बातों के साथ रोड सेफ्टी की भी चर्चा करें। इस प्रकार का मेरा आप सभी से अनुरोध है, चाहे वो यहाँ उपस्थित हमारे छात्र छात्राएं हैं, कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं या हम सब जितने भी हैं, इसको एक चर्चा का विषय बनाएं ताकि वो व्यापक रूप में कार्यक्रमों से हट के घर घर तक पहुंचे, इसकी इम्पोर्टेंस पहुंचे कि रोड सेफ्टी क्या है। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। एक बार कोविड-19 से फिर आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी कामना है। आप अच्छा कैरियर बनाएं, अच्छे पढ़े लिखें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और भाई साहब चौधरी राजेंद्र सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस दिशा में शिक्षा का महत्व होता है, शिक्षा जिस लिए दिलाई जाती है, उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर भाई साहब प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास हम सबको देखने को मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई चौधरी राजेंद्र सिंह साहब को भी देना चाहूँगा। और उनके इस कार्य में सहयोग कर रहे सभी प्रधानाचार्य, स्टाफ, समस्त कर्मचारी गणों को बहुत बहुत मेरी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमें ये एक ऐसा डेवलप करें कि आने वाला जो एक सिटीजन हमको है, भारत को ऐसा सिटीजन मिले जो चहुमुखी विकास करे और ये जो भ्रष्टाचार और तमाम तरह की जो समाज में विसंगतियां आती हैं, इनको दूर करने का भी प्रयास करें। क्योंकि परंपराएं, अक्सर लोग समझते हैं कि परंपरा का मतलब है पुरानी रीतियां, पुराने रिवाज। नहीं, परंपरा नित्य नवीन होने का नाम है। उद्बोधन के इसी क्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व को आवाज लगाना चाहूंगा कि जो भले कोविड-19 में जब लोग घबरा रहे थे तो वो सड़कों पर हमारी सुरक्षा के लिए दौड़ रहे थे, व्यवस्थाओं में नहीं हो रहे थे। और एक बार तो लगा कि जैसे
गढ़ में व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, लेकिन उन्होंने संभाल लिया। और वो संभालते भी क्यों ना, क्योंकि नाम उनका है विजयवर्धन सिंह तोमर। और नाम को सरकार करते हुए मिशन शक्ति के कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी महोदय यहाँ पर आई, रूपाली राय जी आई, उन्होंने बताया कि छात्राओं को मुखर होकर के बोलना चाहिए। समस्याएं तभी निपटती हैं जब आप उनके सामने डट जाएं। और लगभग सुरक्षा की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि गढ़मुक्तेश्वर के सभी विद्यालय इस तरह की समस्याओं से, घटनाओं से, विद्यालयों के आसपास में होने वाली जो असुरक्षित घटनाएं हैं उनसे मुक्त है। मैं उप जिलाधिकारी महोदय जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और विशेषज्ञता के माध्यम से कुछ बच्चों के लिए आए। पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित मैनेजर साहब राजेंद्र सिंह जी, ARTO साहब, KRM साहब, स्कूल के टीचर्स, स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डीएम पब्लिक स्कूल में आके आपके बच्चों का डिसिप्लिन देखकर इनको एक अलग ही अनुभव होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ पे डिसिप्लिन होगा वहाँ के बच्चे और वहाँ के नागरिक हमेशा ही सफल होंगे, क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप स्कूल में बैठे हैं, एक स्कूल का एक अनुशासन होता है, उसका पालन करेंगे। सड़क पर निकलेंगे तो स्कूल सड़क के नियम कानून है, वहाँ डिसिप्लिन है, वहाँ पालन करेंगे। और घर में भी रहेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन से जुड़ा ही हमारा ये सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह है। और हम सभी लोग जानते हैं, बच्चे सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए, ट्रिपल ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, सीट बेल्ट यूज करना चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारी होने की हैसियत से मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं, बहुत भीषण एक्सीडेंट देखे हैं, ट्रकों के एक्सीडेंट देखे, आमने सामने 10-20 लोगों के मरने के एक्सीडेंट देखे हैं। लेकिन अभी मैं 10 दिन पहले थोड़ा अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं अभी गाड़ी से अपने जा रहा था बहादुरगढ़ थाने, मेरे सामने ही बिल्कुल एक मोटरसाइकिल सड़क से थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई और उसमें 3 लोग सवार थे, एक आदमी था और 2 महिलाएं थी। आदमी तो अपने सिर में हेलमेट लगाए बैठा हुआ था, तो वो खड़ा हो गया जाके, उसमें एक महिला के बिल्कुल आंखों के सामने मेरे घटना गई थी। उसके इतनी तेज सर में चोट लगी कि वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। हम लोगों ने फटाफट वहाँ से गाड़ी अरेंज करके उसको भिजवाया जाके, उसकी महिला की डेथ हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग को डिसिप्लिन अपने आप खुद रखना है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो आगे वाले को जरूरी नहीं कि उसी का एक्सीडेंट होगा वही हेलमेट पहने। पीछे जो बैठे हैं उनको भी हेलमेट लगाना है, उनको भी सुरक्षा करनी है। ये नहीं कि बस आगे बैठने हेलमेट लगा लिए दिखाने के लिए हमने हेलमेट रखा हुआ है, पीछे 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, वो बिना हेलमेट के हैं और ट्रिपल गाड़ी को चलाना वैसे ही रिस्की रहता है। तो ये हमें भी देखना है, आप लोग सबको भी। आप एक आदत डालें इस चीज़ की कि हेलमेट अगर आपके पिता गाड़ी बाइक चला रहे हैं तो उनको पहले बोलिए और कोशिश करिए कि पीछे वाले सीट वालों के लिए हेलमेट रखें अपने पास में। अब नियम कानून तो बने हैं इस संबंध में, दिल्ली में आप जाइए तो आप पीछे सीट वालों को भी हेलमेट पहनना चाहिए। लेकिन हम लोग आगे सीट वालों को ही, उनको बड़ा संकोच होता है या शर्म महसूस होती है कि मैं हेलमेट पहन रहा हूँ और नियम कानून का पालन कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। तो हम लोग को ये सब चीज़ें देखना है कि हम लोग कैसे ये आदत में हमें शामिल करना पड़ेगा इस सब चीज़ों को, कि सड़क में जा रहे हैं किस तरफ हमें चलना है और कहाँ हमें देखना है कि वही अपोजिट डायरेक्शन में, और खुद सतर्क रहना है। आप मान के चलिए कि हर आदमी यहाँ पे जो आ रहा है किसी भी डायरेक्शन से जो भी आ रहा है वो गलत है। आपको अपने चौकन्ना रहना हर तरफ से कि मेरे पीछे से भी कोई आ सकती गाड़ी, मेरे दाएं से भी कोई आ सकती, बाएं से भी आ रही है। सड़क पे चलिए तो हर तरफ चौकन्ना रहिए, अपने हर तरफ नजर रखिए। ये तो मैं सड़क सुरक्षा के बारे में बताया मैंने, लेकिन मैं थोड़ा सा सबसे ज़्यादा आप लोगों को कोविड के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों के सभी स्कूल काफ़ी दिनों से अभी बंद चल रहे थे, मार्च से ही सभी चल रहे थे, 2-3 महीने से स्कूल खुले हैं। तो आपके स्कूल में तो बच्चों को मैं देख रहा हूँ मास्क के लिए सबसे पहले एक जरूरी चीज़ है कि कोविड
से बचने का सबसे आसान नियम यह है कि भीड़ में न जाएं और मास्क हमेशा यूज करें। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने। आप घर के बाहर निकल रहे हैं तो मास्क क्यों पहनना जरूरी है आप लोगों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि कोविड 2 तरीके से क्लियर हो सकता है। आपके हाथ लगाने से नाक में और मुंह में, आंखों में भी होता है, आंखों से भी जा सकता है, लेकिन सबसे मुख्य चीज़ है कि आपके नाक से और मुंह से मास्क इसलिए लगाया जाता है। मेरा तो 6 महीने का अनुभव है कि आप कोविड पेशेंट को अगर छू भी लेंगे आपको कुछ नहीं होगा जब तक कि आपने ये हाथ अपना मुंह पे नहीं लेके जाएंगे या नाक पे नहीं लेके जाएंगे। इसीलिए आप जैसे किसी को आपने एक ऐसी सरफेस को टच कर लिया जहाँ पे कोविड होने, आप हाथ धो लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि सैनिटाइज करिए, अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लीजिए। घर में रहने आप लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं ज़्यादा कि आपको हाथ धोने, लेकिन बाहर से कहीं आप आ रहे हैं या किसी ऐसी सरफेस को छू रहे हैं कि जहाँ पे लोगों की छूने की संभावना ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं, केवल अपना हाथ लीजिए, उसको धोइए, साबुन से धोइए और आपसे कुछ नहीं करना। केवल मास्क में आपको ये हमेशा मुंह में मास्क लगा के रखना है कि आपका हाथ जो है नाक और मुंह में न टच करे। केवल यही बचाव का उपाय है और भीड़ में न जाए, अनावश्यक घर से न निकले बाहर। कोई जरूरी काम हो तभी निकलें, घर के अंदर रहिए और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। खास तौर पे भीड़ वाले एरिया में तो बिल्कुल ना जाए, वहाँ पे कि अवॉइड करें, कोई जरूरी काम हो बाहर निकले जाके। और मास्क घर से कदम बाहर रखते ही पहले सबसे पहले मास्क को देख लें। आपने मास्क लगाया है, मास्क लगाने का प्रॉपर तरीका है पूरा ढका होना चाहिए नाक मुंह। ये नहीं है कि आपका नाक बाहर दिख रही है और मुंह केवल ढक लिया केवल दिखाने के लिए, यहाँ लटक रहा है उधर लटक रहा है, ये सब चीज़ें। मास्क को पहनना कोई वो नहीं आपको फैशन है या वो सब चीज़ें हैं, आपको केवल अपने बचाव के लिए करना है, नाक और मुंह को बचाव करना है आपको। ये बिल्कुल 100% श्योर है कि केवल नाक और मुंह से कोविड होता है, अंदर जाता आपको इन्फेक्शन करता है। बाकी आपके हाथ से कुछ नहीं होना है, आपके हाथ कहीं सरफेस को छूने कुछ नहीं होना है, लेकिन आप जब हाथ को आप नाक मुंह में लगाएंगे तो उसके रास्ते कोविड प्रवेश करता है आपकी बॉडी में। तो हम लोग को ये सुरक्षित करना है और अपने घर में भी सब लोग को इस बारे में एजुकेट करना है। आपके घर में माता पिता आपके जो बाहर जाते हैं उनको भी करना है कि घर से जैसे ही बाहर से कहीं आए, पिताजी आपके अगर जॉब करते हैं कहीं से आते हैं उनको फटाफट बोलिए कपड़े आपके बाहर रखिए, और क्योंकि कपड़ों से अंदर प्रवेश करेगा घर के अंदर तो वो इधर उधर फैलेगा। तो फटाफट जो बाहर कपड़े आते हैं उनको चेंज करिए, घर के कपड़ों में आइए, नॉर्मल रहिए, बाहर जाते समय मास्क लगाइए। तो मेरा ये 2-3 चीज़ें थी और मैं अंत में सबको फिर से जो खास तौर पर 10th और 12th के बच्चे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।